Good afternoon, good morning, students. Hello. Hello. Yes, ma'am. Good morning to all. Good morning, ma'am. Yes, ma'am. Today we start. Yes, good morning. Uh, आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का. ओके. In third chapter, the chapter name is process management. Under process management, we start with the process definition. Again, the difference between what is process and program, and what are the process states, what is PCB, process control block, and many more topics are there. So first of all, start with the process definition. Can anyone remember the definition of process? Last time we already discussed about the topic process and program, and I also told you the difference between the process and program. If anyone remember the definition, if anyone remember the definition of process or the difference between process and program. Process is the runtime execution of program. Process is active entity. Yes. Program is only just the lines of code. Then in the same way, program is just lines of code, and process is the runtime execution of program. And in a program, the program is a passive entity and process is the active entity. Okay. And after that, many more points are there जो आज हमें नेक्स्ट थर्ड चैप्टर में देखने हैं. तो पहले प्रोसेस डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. गो टू द नेक्स्ट पीपीटी. This is the definition of process. Process is a program is a passive and process is the active. An attribute held by a process include hardware state, memory, CPU, and progress, execution process. नॉर्मली जब भी कोई प्रोसेस रन होता है तो सबसे पहले प्रोग्राम जब तक हम टाइप करते हैं, देन द प्रोग्राम इन पैसिव स्टेट. When the program is in passive state, then there is no need of main memory for execution. Then there is no need of CPU cycles for execution, or there is no need of any hardware like its input output devices. जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तब हमें कीबोर्ड लगता है. जब हम प्रोग्राम रन करते हैं, then we need a monitor to show the output. We need a keyboard or mouse to enter some input values. So जब तक प्रोग्राम पैसिव स्टेट में होता है, प्रोग्राम मीन्स जब तक हम प्रोग्रामिंग स्टेट में होते हैं, then that time no need of hardware like as input output devices. There is no need of memory, main memory for execution, because program in passive state, no execution is done. And again there is no need of any CPU cycles. So when the program is in passive state, no this type of activity is held by the program. But when the program is converted into process, means runtime execution of program is started, then it is going into the process state. So in process, the process required hardware, memory, CPU, and progress, execution process. Okay. Why processes? अभी processes की जरूरत क्या होती है? Processes resource sharing, logical files and physical hardware, computation speed up and modularity for protection. प्रोसेसेस की जरूरत इसके लिए होती है कि हम रिसोर्सेस को शेयर कर सकते हैं. एक ही कीबोर्ड और माउस यूज करके, एक ही सीपीयू को यूज करके आप नंबर ऑफ मल्टीटास्किंग प्रोग्राम्स रन करते हो जहाँ पे नंबर ऑफ रिसोर्सेस शेयर्ड होते हैं. मैक्सिमाइज द सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है वहाँ पे. तो रिसोर्स शेयरिंग का मतलब ये रहता है कि जो भी हमें हैश इंक्लूड हम फाइल्स डिक्लेयर करते हैं या फिर फिजिकल आईओ डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं, एक प्रोग्राम के लिए जो यूज कर रहे हैं वो दूसरे प्रोग्राम के लिए भी सेम वही रिसोर्सेस शेयर किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं. तो रिसोर्स शेयरिंग होता है. और प्रोसेसेस का एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पे एक प्रोसेस
एक दूसरे से कम्युनिकेशन भी करता है. दे आर सिंक्रोनाइज एंड कम्युनिकेट टू ईच अदर. एंड आल्सो द वन मोर एडवांटेज ऑफ प्रोसेसेस इज द, अगर हम प्रोग्राम्स को प्रोसेस में अगर डिवाइड करेंगे तो उसकी वजह से हमारा जो स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन है, कंपटीशन स्पीड अप, वो थोड़ा सा बढ़ता है. मल्टीपल टास्क हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. और प्रोटेक्शन रहता है. प्रोटेक्शन मतलब क्या है कि रन टाइम पे हम मेमोरी और सीपीयू साइकिल्स एलोकेट करते हैं, तो रन टाइम पे हमारे प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं कर पाते आप. तो रन टाइम पे जब हमारा मॉड्यूल्स अगर आप अलग अलग रन करोगे तो रन टाइम पे कोई भी यूजर वहां पे अलग अलग वहां पे चेंजेस नहीं कर पाएगा. तो मॉडल्स मतलब एक बड़े प्रोग्राम्स को अगर आप छोटे छोटे मॉडल्स में अगर आप मॉड्युलरिटी मीन्स दैट, मॉड्युलरिटी में बड़े वाले प्रोग्राम्स को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, और वो छोटे मॉड्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू प्रिपेयर द project for college admission system, if you want to prepare a college system, then that time there is admission is there. Again, some modules are there for admission, for leaving, for scholarship form. These are the different activities, and for different activities there is a need of separate program. And if all the programs are separated but they are commonly use their database, मतलब एक ही डेटाबेस रहेगा जिसके ऊपर वो 3-4 प्रोसेस एक्टिविटीज रन करेंगे, तो उससे मॉड्युलरिटी होता है. और क्या रहता है कि बड़े वाले प्रोग्राम में जैसे हम एरर इजीली ढूंढ नहीं पाते, वो प्रोसेस छोटे छोटे पार्ट्स में अगर उसको डिवाइड किया तो उसका एग्जीक्यूशन जल्दी हो जाता है और हमें एरर फाइंड करने के लिए भी इजी जाता है. नेक्स्ट, तो फिर से एक और बार बताती हूँ कि प्रोसेस इज द रन टाइम एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, एंड प्रोग्राम इज जस्ट लाइंस ऑफ कोड, एंड इन लाइंस ऑफ कोड is there, then the program is a passive entity and process is a active entity. अभी प्रोसेस जो होता है वो प्रोसेस अलग अलग स्टेट से एक एक करके एग्जीक्यूट होते जाता है. तो अभी प्रोसेसेस से जब वो अलग अलग स्टेट्स में एग्जीक्यूट किए जाते हैं तो वो कौन से स्टेट्स होते हैं? हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो. हाँ, ओके. In processes there are 5 states are there: new, ready, running, waiting and terminated. जब प्रोसेस नया हम क्रिएट करते हैं, when the process is created, that time the process in new state, मतलब नया प्रोसेस जैसे ही क्रिएट होता है, न्यू जैसे क्रिएट होता है, द प्रोसेस इज जस्ट बीइंग पुट टुगेदर. जैसे ही वो क्रिएट होता है, मतलब जैसे ही उसको बोलते हैं कि हम रन टाइम पे डाल देते हैं, तो वो नया प्रोसेस क्रिएट होता है. देन रेडी का मतलब क्या रहता है? न्यू के बाद अगर आप डायग्राम देखोगे, डायग्राम पे जाओ आप, डायग्राम को देखना है अच्छे से. देखो, जब नया प्रोसेस क्रिएट होता है, देन द प्रोसेस इन न्यू स्टेट, उसका पहला स्टेट रहता है न्यू. और उसके बाद वो एडमिटेड, मतलब हम क्या करते हैं कि एक रेडी क्यू होता है. रेडी क्यू में जितने भी प्रोसेसेस रेडी फॉर एग्जीक्यूशन होते हैं. अभी प्रोसेसेस रेडी फॉर एग्जीक्यूशन कब होते हैं? व्हेन द प्रोसेसेस हैव ऑल इट्स रिसोर्सेस लाइक एज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज. जब किसी भी प्रोसेस के पास उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज होते हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज में आता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और उसके पास होना चाहिए सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज लाइक एज हैश इंक्लूड ऑल द हेडर फाइल्स. जब उसके पास सारे सॉफ्टवेयर फाइल्स एज वेल एज हार्डवेयर रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे,
देन द प्रोसेस इज एडमिटेड मीन्स रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। जब तक उसके पास सारे रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, हमने पहले ही डिस्कस किया कि रिसोर्स शेयरिंग होता है। अगर कोई भी प्रोसेस रिसोर्स अगर शेयर कर रहा है तो उसके पास वो रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए। अगर किसी के पास रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, इफ द रिसोर्सेस आर नॉट अवेलेबल, देन द प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, उतने टाइम तक वेट करना पड़ेगा। और आपको ये भी पता है कि मल्टीटास्किंग का मतलब ये रहता है कि मल्टीपल टास्क मीन्स मल्टीपल प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड। मल्टीपल प्रोसेसेस अगर एग्जीक्यूट करने तो साइमल्टेनियसली हम क्या करते हैं कि वन बाय वन हर प्रोसेस को थोड़ी थोड़ी देर के लिए सीपीयू साइकिल्स, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देते जाते हैं। उसका डायग्राम मैंने मल्टीटास्किंग का डायग्राम अगर आपको याद आ रहा है तो क्लियर होगा कंसेप्ट। तो सेम वे यहाँ पे आप मल्टीटास्किंग में एक ही प्रोसेस के पास रिसोर्सेस हर टाइम पे के लिए नहीं रख सकते, आपको वो रिसोर्सेस शेयर करने हैं। तो इसलिए जब तक उसके पास वो रिसोर्सेस नहीं है तब तक वो न्यू स्टेट से रेडी नहीं होगा, रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। ओके, तो व्हेन ऑल द रिसोर्सेस आर अवेलेबल टू द प्रोसेस, देन द प्रोसेस इज एडमिटेड फॉर रेडी state means there is a one queue is there where all the ready processes are stored। और क्यू का मतलब ये रहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो प्रोसेस सबसे पहले इनपुट किया है रेडी क्यू में, वही प्रोसेस सबसे पहले रनिंग स्टेट में जाता है, एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो यहाँ पे रेडी स्टेट में आपके सारे नंबर ऑफ प्रोसेस रेडी प्रेजेंट है। उसके बाद अभी एरो देखो, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट की तरफ एक एरो जा रहा है, उसे कहते हैं शेड्यूलर डिस्पैच। शेड्यूलर डिस्पैच का मतलब ये रहता है कि एक एक प्रोसेस को वाया शेड्यूलर मीन्स शेड्यूलर इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू असाइन प्रोसेसेस फॉर असाइन सीपीयू टू द प्रोसेसेस। शेड्यूलर एक सॉफ्टवेयर होता है कि जो एक एक प्रोसेस को लेता है जितने रेडी क्यू में प्रेजेंट है, और उसमें से एक एक प्रोसेस को लेके उसको एग्जीक्यूशन के लिए मतलब सीपीयू साइकिल्स एलोकेट करके, आईओ डिवाइसेस एलोकेट करके और ओएस का टर्न असाइन करके उसका एग्जीक्यूशन, एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। अभी उसको मेन मेमोरी में जगह मिल गई, आईओ डिवाइसेस मिल गए, सीपीयू साइकिल्स मिल गए और ओएस का कंट्रोल मिल गया, देन प्रोसेस स्टार्ट्स इट्स एग्जीक्यूशन। तो न्यू का मतलब रहता है कि प्रोसेस इज न्यूली क्रिएटेड, देन इट इज बीइंग रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, and after the process is ready for and after the process is ready for execution, then it is in via with the help of scheduler dispatcher. Scheduler is a software which is schedule means to take one by one process from the ready queue and put it in a running state। तो उसको मेन मेमोरी अवेलेबल करके उसका एग्जीक्यूशन, एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। और प्रोसेस जैसे ही रनिंग हेलो, इज देयर एनी प्रॉब्लम? आवाज आ रही है सभी को अभी? हेलो, जिन लोगों को नहीं सुन, ओके, मैं फिर से ये डायग्राम में एक्सप्लेन कर रही हूँ जिन लोगों को नहीं समझ में आया होगा। ओके, in process, a process is the runtime execution of program, and in process there are 5 states are there. 5 states, first state is the new state. When the process is created, that time the process in new state. And when the processes have all the resources, all the required resources like as hardware and software resources, then the process is ready for execution. And when as we know that the process are sharing the resources, मीन्स एक ही प्रोसेस सारे रिसोर्सेस ऑल द टाइम उसको होल्ड करके नहीं रख सकता, वन बाय वन रिसोर्सेस को फ्री करते जाना है, दूसरे प्रोसेस को असाइन करते जाना है। तो जब वो कोई प्रोसेस उसके रिसोर्सेस को फ्री करेगा, लाइक एज हमें प्रोग्राम रन करने के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगते हैं, कीबोर्ड लगता है, माउस लगता है, मॉनिटर लगता है। जब एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है, उसी टाइम पे दूसरे प्रोग्राम हम मॉनिटर पे डिस्प्ले नहीं कर सकते, तो उसको पहले हमें आईओ डिवाइसेस का कंट्रोल असाइन करना पड़ेगा उस प्रोग्राम को, मतलब उसको रन करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे जैसे रिसोर्सेस शेयर होंगे, तो जब प्रोसेस के पास सारे रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे, मेन मेमोरी, सीपीयू साइकिल्स, आईओ डिवाइसेस, ऑल दीज आर रिसोर्सेस आर अवेलेबल, then the process is ready for execution. And when the process is ready for execution, there are number of processes are waiting in ready queue, and via the ready queue with the help of FIFO principle, first in first out principle, one by one process is taken from the ready queue and put it for execution with the help of scheduler.
and scheduler or the dispatcher is a software. Okay, ये रहा आपका रेडी टू रनिंग वाला एरो। उसके बाद व्हेन द प्रोग्राम इज इन रनिंग स्टेट, अभी हो सकता है कि जब रनिंग में है तो बीच में उसको कोई आईओ इवेंट आ गया, आईओ डिवाइसेस का कोई इवेंट आ गया। आईओ इवेंट मतलब हमें यूजर से कुछ इनपुट लेना है, जब तक यूजर इनपुट ही नहीं डालेगा तब तक प्रोसेस आगे एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएगा, तो उतने टाइम तक हमें वेट करना पड़ेगा। तो जब तक यूजर वेट करता है, मतलब रनिंग स्टेट में है प्रोग्राम बट वेटिंग फॉर द आईओ इवेंट, मतलब जैसे हम माउस का कोई क्लिक करना इम्पोर्टेंट है उस टाइम पे, या फिर यूजर का कोई इनपुट आना जरूरी है तो उस टाइम पे, या फिर एनी आउटपुट डिवाइसेस के रिलेटेड कोई रिक्वेस्ट है, तो जब तक वो एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होती है उस टाइम पे वो प्रोसेस वेटिंग स्टेट पे होता है। जैसे ही कोई यूजर वहां पे कीबोर्ड के थ्रू इनपुट करेगा, मतलब इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कुछ यूजर ने इनपुट डाला, तो उसको इनपुट मिलते बाद उसका आगे का एग्जीक्यूशन वो स्टार्ट करेगा। तो आईओ इवेंट कंप्लीट होते ही वो वेटिंग स्टेट से फिर से रेडी में जाता है। सभी को डायग्राम समझ में आ रहा है? हेलो, डायग्राम समझ में आ रहा है अभी मैंने जो बताया? ओके, व्हेन द प्रोसेस, ठीक है, तो जब प्रोसेस रनिंग स्टेट में होता है और इफ देयर इज अ नीड ऑफ एनी आईओ इवेंट मींस देयर इज अ नीड ऑफ यूजर इनपुट, दैट टाइम द प्रोसेस इज इन वेटिंग स्टेट। whenever the user enters something into the input devices or output devices, that time the event is completed, and after the IO event is completed the process is going back to the ready state। तो जो प्रोसेस पहले रनिंग में था उसके पास सीपीयू ओएस का आईओ डिवाइसेस का कंट्रोल था, लेकिन वो क्या किया हमने, जैसे ही प्रोसेस वेटिंग स्टेट में गया तो हमने क्या किया, शेड्यूलर डिस्पैचर से किसी दूसरे प्रोसेसेस को रनिंग स्टेट में डाल दिया, मतलब उसके पास सारे रिसोर्सेस असाइन कर दिए। तो क्या हुआ था कि जब अभी ये देखो ये वाला प्रोसेस रनिंग से वेटिंग में चला गया, तो रनिंग से वेटिंग में जाने के बाद रनिंग तो अभी ब्लैंक है, कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन नहीं चल रहा है, और हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स के हिसाब से मल्टीटास्किंग करना है। तो मल्टीटास्किंग अगर करना है तो वहां पे कोई भी सीपीयू स्टेट आइडल नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे ही प्रोसेस का एग्जीक्यूशन वेटिंग स्टेट में जाता है तो रेडी क्यू से नेक्स्ट वाला प्रोसेस लेके उसको रनिंग में डालना है। और रनिंग में डालने के बाद क्या होगा, जब एक प्रोसेस वेटिंग में होगा दूसरा प्रोसेस रनिंग में होगा, तो ये वेटिंग वाला प्रोसेस जब वेटिंग से फिर से रेडी में उसको डाला जाएगा, फिर से उसको रनिंग में नहीं डालते, उसको कहाँ पे डालते हैं, रेडी में डालते हैं। तो रेडी में डालने के बाद क्या होता है, फिर से वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए रेडी, मतलब अभी फिर से उसको क्यू में डालते हैं, और जो उसके आगे वाले 1 बाय 1 प्रोसेस है उनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होते जाता है, जैसे उसका टर्न आएगा तो उसको फिर से रेडी से रनिंग में डाला जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस मल्टीटास्किंग का कंसेप्ट कैसे हो रहा है, व्हेन द प्रोसेसेस आर रेडी दे आर इन अ क्यू, and when the processes are executing 1 by 1 processes are executed, when the running state is free then next process is put into the execution। running means execution of process। waiting का मतलब क्या है, waiting for the event। अभी running के बाद एक एरो दिखा है वहां पे, running to ready interrupt, बीच में अगर कोई interrupt है, interrupt या फिर बोल सकते हैं कि कोई टाइप का, अगर वहां पे interrupt is nothing but unwanted signal which stop the normal execution of process। तो बीच में अगर हमारे प्रोसेस को कोई स्टॉप करता है या फिर कोई प्रॉब्लम ऑकर होता है, तो जिस स्टेट पे प्रोग्राम स्टॉप हुआ था वही स्टेट से फिर से वो उसको रनिंग से रेडी में डाल देता है। अगेन रेडी का जैसे ही टर्न आएगा शेड्यूलर का, तो शेड्यूलर वहां से 1 बाय 1 उस प्रोसेस को डिस्पैच करते जाएगा। तो जिस प्रोसेस में प्रॉब्लम है उसको स्टॉप करना पड़ेगा, और रेडी क्यू क्या करेगा, नेक्स्ट क्यू में जो प्रोसेस प्रेजेंट है उसको रनिंग स्टेट में एग्जीक्यूशन के लिए डालेगा। तो यहाँ पे इतना पार्ट समझ में आ गया। देन लास्ट में क्या होता है, रनिंग से अगर सारे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, मतलब ऑल आईओ डिवाइसेस फिर ले एक्टिविटी वेटिंग ये सारा अगर एक प्रोसेस का कंप्लीट हो जाता है ऑल, मतलब जैसे मेरा एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम फॉर एडिशन, तो प्रोग्राम फॉर एडिशन के लिए 2+3 का अगर प्रोग्राम है, तो 2+3 का अगर प्रोग्राम है
तो मैंने 2 और 3 इनपुट डाला, 2 और 3 इनपुट डालने के बाद वो वेटिंग स्टेट में गया होगा, वेटिंग स्टेट से फिर से वो रेडी में जाएगा, और 2 3 डालने के बाद मेरे प्रोग्राम में आगे इनपुट आउटपुट मतलब कोई वेट करने जैसा कोई इवेंट नहीं, तो डायरेक्टली मेरे सामने क्या जाएगा, आउटपुट। तो रनिंग स्टेट में आउटपुट डिस्प्ले होने के बाद लास्ट में हम क्या लिखते हैं, गेट सी एच, मतलब एग्जिट। तो वैसे ही प्रोग्राम का लास्ट वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते करते जब लास्ट लाइन आ जाएगा, तो वहां पे आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा और वहां से वो एग्जिट होके टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब क्या है कि उसको उस क्यू से, मतलब उस रेडी क्यू से बाहर निकाल देते हैं, उसकी मेन मेमोरी को फ्री कर देते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेशन का मतलब क्या है, स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। now if you have any question regarding this diagram, you can ask me now। ये डायग्राम अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा या फिर जो पार्ट या फिर जो एरो नहीं समझा है वो मुझे पूछ लो, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक बताती हूँ। Anybody have question? Hello? हेलो, किसी को क्वेश्चन है क्या? डायग्राम को अच्छी तरह से देख लो, पूरा समझ में आया है क्या? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है प्रोसेस स्टेट का। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को डायग्राम का प्रोसेस स्टेट का टॉपिक क्लियर हो चुका है, तो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाए। ठीक है, गो टूवर्ड द नेक्स्ट पीपीटी। दिस इज द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अभी देखो, हर प्रोसेस के लिए एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। मतलब जैसे हमने बोला है ना कि जैसे फाइल क्रिएट होता है, तो फाइल क्रिएट होने के बाद फाइल एलोकेशन टेबल होता है, एफएटी। तो फाइल एलोकेशन टेबल में हर फाइल का एक एक एंट्री, मतलब उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर किया रहता है। तो सेम वे हर प्रोसेस की इंफॉर्मेशन, फॉर एवरी प्रोसेस there is a separate TCB, process control block, or TCB, task control block. Just note down, task control block or the process control block, both the concepts are same. तो process control block का मतलब ये रहता है कि process control block which hold the information of process, it is called as PCB or TCB। अभी कौन सा इंफॉर्मेशन होल्ड करता है? तो आपको पता है जब प्रोसेस रन होता है तो हर प्रोसेस के पास प्रोसेस का अलग अलग स्टेट होता है, हर प्रोसेस का एक यूनिक नंबर होता है, हर प्रोसेस का एक यूनिक नंबर होता है। अगेन पॉइंटर होता है। पॉइंटर किसके लिए होता है? आपको पता है कि इफ प्रोग्राम हमने अगर लिखा तो वो हर पॉइंटर लेता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। वो क्या करता है? पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो लास्ट टाइम जितना इंस्ट्रक्शन हो चुका है उसके नेक्स्ट को पॉइंट करने का काम जो करता है वो पॉइंटर रहता है। प्रोसेस स्टेट्स मींस देयर आर टोटल 5 स्टेट, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेटेड। उसमें से करंटली प्रोसेस कौन से स्टेट में है वो होल्ड करते जाता है। देन प्रोसेस नंबर, एवरी प्रोसेस हैव अ यूनिक नंबर असाइन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू द प्रोसेस, तो उसका यूनिक नंबर होता है। प्रोग्राम काउंटर होता है, प्रोग्राम काउंटर जिसका काम रहता है कि नेक्स्ट को पॉइंट करते जाना, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ जाना। अभी देखो पॉइंटर में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे भी आता है कि कभी कभी आपके जो प्रोसेसेस है, इफ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर साइमल्टे, एक दूसरे से अगर कनेक्टेड है तो उस टाइम पे क्या करना पड़ता है कि जैसे आपको डाटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट था कि हमें नेक्स्ट को पॉइंट करने के लिए उसका लिंक रहता है, लिंक लिस्ट के कंसेप्ट में। सेम वे एक दूसरे से अगर प्रोसेसेस कनेक्टेड है या फिर शेयर्ड है तो उस टाइम पे विद हेल्प ऑफ पॉइंटर दूसरे प्रोसेस का बीच में अगर कोई एग्जीक्यूशन का पार्ट है और बैक टू फिर से बैक आने के बाद ये वाला प्रोसेस का एग्जीक्यूशन है, मतलब एक दूसरे से डिपेंडेंट अगर प्रोसेस है उस टाइम पे वहां पे पॉइंटर का भी कंसेप्ट आता है। मतलब वो जो पॉइंटर है वो पॉइंट करेगा नेक्स्ट प्रोसेस को, उसका एग्जीक्यूशन करेगा, और जब नेक्स्ट प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा बैक टू द मेन प्रोसेस आएगा। मीन द प्रोसेसेस आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। देन इट स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ रजिस्टर। जैसे आपको पता है कि अगर हम ऊपर अलग अलग नाम दे रहे हैं,
ऊपर हम हर प्रोसेस का नाम अलग दे रहे, लेकिन जैसे int a b c d, these are the name of the variables which are assigned by the user, but internally every value that is assigned by the user are stored in the registers, like as a की वैल्यू ax में stored होगी, b की वैल्यू bx में stored होगी, c की वैल्यू cx में stored होगी, means every values which are declared by the variables with the declared by the user with the help of variables, that values are stored in the register, and all the registers are ax bx dx and all. तो उसमें क्या क्या वैल्यू स्टोर्ड है वो होल्ड करता है। मेमोरी लिमिट मतलब हमारे प्रोग्राम को कितनी साइज का मेमोरी लगने वाला है, 100 जैसे 1000 पे अगर करंटली एरो है तो 1000 से लेके कितने उसका साइज है, कितने उसको एग्जीक्यूशन के लिए कितना है, या फिर उसका मेमोरी कितना है, मेमोरी लिमिटेशन बेस एड्रेस ऐड करके हम फाइंड आउट करते हैं। तो बेस एड्रेस में उसका जो ये है लिमिट ऐड करके हम नेक्स्ट वाला जो एड्रेस आने वाला है उतनी साइज का मेमोरी और ब्लॉक हम उस प्रोसेस के लिए एलोकेट करते हैं। देन लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स का मतलब ये रहता है, जैसे आप सी का प्रोग्राम लिखते हो #include stdio.h, तो उसके लिए मैंने stdio.h का एक फाइल इंक्लूड करती हूँ, conio.h एक फाइल ओपन करती हूँ। तो ये इतने सारे फाइल्स हमें ओपन करने पड़ते हैं। ओपन का मतलब क्या है कि व्हेनेवर प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा वहां पे प्रिंट एफ, स्कैन एफ या फिर इस टाइप के जो भी कमांड्स आएंगे तो उनके डेफिनेशंस चेक करने के लिए उसको stdio.h, conio.h ये वाले फाइल्स में जाके उसको उसके डेफिनेशन को रन करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन को जब रन करना पड़ेगा तो वो डेफिनेशन रन करने के लिए सबसे पहले मुझे कुछ फाइल्स ओपन करके मतलब इंक्लूड करके रखने पड़ेंगे। तो कितने फाइल्स उस प्रोसेसेस के लिए लगने वाले हैं उनका लिस्टिंग, मतलब पीसीबी का इन्फॉर्म, पीसीबी इज नथिंग बट विच होल्ड्स और स्टोर्स द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस। It contains the information of pointer, process state, process number, process program counter, register, memory, list of open files. ठीक है, तो all these information is stored under the PCB. PCB is also called as TCB, Task Control Block. ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया? हेलो, कंसेप्ट क्लियर है सबका? यस मैम। तो आज मैंने सबसे पहले जो बताया वो फिर से एक और बार रिकॉल करते हैं, फिर आगे का देखते हैं। सबसे पहले हमने प्रोसेस देखा, प्रोसेस के डेफिनेशन देखे, देन प्रोसेस स्टेट डायग्राम एक्सप्लेन किया मैंने, और उसके बाद पीसीबी एक्सप्लेन किया। तो ये 2-3 टॉपिक हमारे अभी एक्सप्लेन हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं और उसके बाद लेक्चर को स्टॉप करेंगे। एक दिन में ज्यादा टॉपिक नहीं लेंगे हम। नेक्स्ट, और नीचे आओ थोड़ा। हाँ, डायग्राम में देखो अभी आप लोग। हेलो, सी इन द डायग्राम शेड्यूलिंग कंपोनेंट। तो इस ये वाले डायग्राम को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी कहा जाता है, कॉन्टेक्स्ट स्विच। अभी इस डायग्राम को अगर आप अच्छी तरह से देखते हो तो ऊपर वाले पार्ट में दिया है प्रोसेस P0 एंड राइट साइड में दिया है प्रोसेस P1, मतलब 2 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन चल रहा है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ये रोल रहता है कि एक प्रोसेस से कंट्रोल निकाल के दूसरे को असाइन करना, फिर तीसरे को असाइन करना। इसी कंसेप्ट को हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो मल्टीटास्किंग अगर करना है तो प्रोसेस P0 का एग्जीक्यूशन चल रहा है और बीच में अगर प्रोसेस P1 का कंट्रोल असाइन करना है तो क्या करता है और इसका वहां पे रोल क्या रहता है। एंड वो जो कंट्रोल असाइन करना है उसको टेक्निकल लैंग्वेज में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहा जाता है, या फिर शेड्यूलिंग भी बोल सकते हो आप। अभी आप देखो, सबसे पहले P0 का लेफ्ट साइड में देखो, प्रोसेस P0 में एग्जीक्यूटिंग एक एरो दिया है, मतलब P0 इज करंटली एग्जीक्यूटिंग। तो प्रोसेस P0 जब एग्जीक्यूट हो रहा है, बीच में कोई सिस्टम कॉल आया या फिर इंटरप्ट आया, मतलब हो सकता है कि किसी वजह से हमारा प्रोसेस P0 का एग्जीक्यूशन रुक गया। कोई भी सिस्टम कॉल, जैसे आप बोल सकते हैं कि कोई फाइल ओपन करना है, रीड करना है, राइट करना है, यूजर से इनपुट लेना है, एनीथिंग।
तो उस टाइम पे क्या होता है कि प्रोसेस P0 को जैसे ही इंटरप्ट या फिर सिस्टम कॉल आएगा तो उस टाइम पे प्रोसेस 0 हमें स्टॉप करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसका जो करंट स्टेट है पीसीबी का, पीसीबी 0, मतलब ये प्रोसेस 0 का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, इसलिए उसका नंबर भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 0 दिया है। तो जो भी करंट स्टेट में, जैसे न्यू है, रेडी में है, रनिंग में, वेटिंग में, टर्मिनेटेड में, तो उसका जो भी स्टेट है करंट, जो भी मतलब जिस लाइन तक वो एग्जीक्यूट हो चुका है, जहाँ पे पॉइंटर है, रजिस्टर की वैल्यू है, उसको सेव करके रखता है। जहाँ पे स्टॉप हुआ था वहां पे वही स्टेटस को सेव करके रखता है। और क्या करता है, और इसको स्टॉप करने के बाद क्या होगा, तो बीच में जो प्रोसेस है, क्या बोलते हैं, प्रोसेस P1 वाले राइट साइड में अगर आप देखोगे तो राइट साइड में जब प्रोसेस P0 का एग्जीक्यूशन चल रहा था तो प्रोसेस P1 आइडल था। देखो, प्रोसेस P0 एग्जीक्यूट कर रहा था, उतने टाइम तक P1 आपका आइडल था। तो अभी मैं P1 के पास ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल भेज रहा है, तो कंट्रोल भेजने से पहले रीलोड स्टेट फ्रॉम PCB1। रीलोड स्टेट फ्रॉम PCB1 का मतलब क्या रहता है कि जो भी PCB1 का स्टेटस है, मतलब जो स्टेट सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है PCB1, वो सारा इंफॉर्मेशन को लोड करेगा। मतलब वो भी बीच में अगर रुका होगा या फिर कोई कहीं पे स्टॉप हुआ होगा, तो जहाँ पे स्टॉप हुआ होगा वहीं से वो फिर से उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। तो उसको पहले लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, लोड करने के बाद ओएस का कंट्रोल मिल गया तो प्रोसेस P1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो P1 इज इन एग्जीक्यूटिंग स्टेट। हो सकता है कि P1 एग्जीक्यूटिंग स्टेट में वहां पे कोई इंटरप्ट या सिस्टम कॉल आ गया, या फिर उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका। ऐसी अगर कोई स्टेट आती तो वहां पे फिर से क्या करना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, सेव स्टेट इनटू PCB1। जो भी PCB1 का स्टेट था वहां पे फिर से उसको स्टोर कर देना है, सेव कर देना जो उसका करंट स्टेट है वो। और वो अगर सेव कर दिया तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस P0 को ओपन करना पड़ेगा। P0 को ओपन करना है तो फिर से रीलोड स्टेट फ्रॉम PCB0। और जब PCB0 को कंट्रोल दे दिया तो उतने टाइम पे PCB1 आपका आइडल रहेगा। अभी ये डायग्राम को आप अच्छी तरह से अगर देखते हो तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग हो रहा है। व्हेन द प्रोसेस P0 इज एग्जीक्यूटिंग, then the operating system is control toward the PCB0. But when the process P0 stop its execution, then OS assign the control toward the process P1. And before assigning the control to the process P1, it reload the state from the PCB1। process control block 1 से उसकी states को load करता है, then उसको control देके उसका execution start करता है। And after execution of all the instruction of program process 1, then it is again back to the save the state of PCB1 because of any interrupt or system call, or maybe the execution of P1 is completed. That time it save the state of PCB1 and again going back to the process 0 and reload the state of PCB0. But when one process is executing, second process is in ideal state, but not both the processes are idle because of multitasking. Means when one program is executing, second is waiting, and when the second is executing, first is waiting or idle. This concept is called as context switching. And operating system take care of all the processes to assign one by one control to all the processes and switching from one process to another process. And this concept is called as context switching. Now this concept is clear? Okay. If you have any question, you can ask me now. I am just sharing the link of today's attendance. Okay.